Hello everyone, welcome to channel. So today we're going to discuss concepts of average part 2. In the part 1 we have discussed definition of average and we have done the weighted average concept and we have done the questions related that weighted average concept we have done. Today we're going to discuss deviation approach that I have talked about in the last session, and these two things are basic and important part. This you can say a little advanced part are like as I told in the last session that using these concepts you can solve question much faster and questions also seems to be easier. If you are able to write the division approach, if you are able to use this approach, questions you will find easier as compared to using this approach. Okay, so as I told, I will be taking the same questions that we have done in the last session. I have taken the same questions in the last part. What I have done, I have just write the normal equation and I have left the calculation to you guys. So today I will be doing all the calculations because in the division approach your calculations will become easier and will be able to solve the question faster. So weighted average, what I say, like you'll need to use calculator. So in the like cat like exam, you will not find any problem. Like agar calculations aa jate, you can use the calculator. But for other exams, division approach become very important. कैट में भी इंपॉर्टेंट है, लाइक यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन फास्टर, बट दूसरे एग्जाम में इफ कैलकुलेटर इज नॉट देयर देन डेविएशन अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हो सकता है यू मे लीव द क्वेश्चन जस्ट बिकॉज ऑफ द कैलकुलेशन. सो इट विल सेव यू लाइक टाइम ऑल्सो एंड यू विल बी ऑल्सो एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Before I start, I want to discuss this question that I discussed in the last session also. Just I want to add one point that I forget to tell in the last session. So make sure you note down this thing that I'm going to tell in your notebook where you have note this thing. The average marks of 3 sections is given. So 10th section में तुम्हारे 3 section है 10th class में and उनके average marks दिए 90, 120 and 150 and number of students किए हैं 30, 40 and 50. तो हमने एवरेज कैसे निकाला था? वी हैव डन 90 इंटू 30 प्लस 120 इंटू 40 प्लस 150 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 40 प्लस 50. वी हैव डन दिस थिंग. ऐसे हमने निकाला था. तो आई एम गोना टेल यू वन थिंग, ऐड दिस इन योर नोटबुक. ये ऐड कर लो, ये सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैलकुलेशन करोगे आंसर आ जाएगा. वेन एवर यू हैव लाइक जब तुम्हारा जो ऑब्जर्वेशन दी हुई है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दीज 30, 40, 50 को यूज करने के बजाय कन्वर्ट देम इन द सिंपलेस्ट रेशियो फॉर्म. सिंपलेस्ट रेशियो फॉर्म इफ यू हैव वॉच द नंबर्स तुम्हें पता होगा क्या होता है. तो इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो 3, 4, 5. ठीक है, 3, 4, 5 रेशियो में एंड राइट द इक्वेशन 90 इंटू 3 एंड 120 इंटू 4 एंड 150 इंटू 5, 3 प्लस 4 प्लस 5. So do this. This is your answer. This and this both are the same thing. So whenever you have data, try to first convert them in the ratio form so that your calculation become easier. अच्छा, यहाँ पर तुम्हें लग रहा है कि ये तो बहुत ही आसान चीज़ है, वैसे भी आसान हो रहा था ना, 30, 40 था, कुछ नहीं, यहाँ से यहाँ 0, 0 ऐसे कैंसिल कर दे. बट सपोज यहाँ पर इसकी बजाय कुछ और लिखा होता. लेट्स से ये होता 18, 72 और 90. 18, 72, 90. तो देखो मल्टीप्लाई करना डिफिकल्ट हो जाता. 72 है ना, 150 इंटू 90 ऐसे करते मल्टीप्लाई डिफिकल्ट हो जाता. अगर 30, 40, 50 की बजाय डेटा होता 18, 72 एंड 90, कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाते. बट अगर अभी देखो 80 और 72 को अगर तुम रेशियो में कन्वर्ट कर लेते तो यही रेशियो आता. यू विल गेट द सेम रेशियो, कैलकुलेशन आसान हो जाता. ओके, सो दिस थिंग आई एम ट्राइंग टू से, मेक श्योर यू नोट डाउन दिस थिंग. ठीक, इससे तुम्हारे कैलकुलेशन आसान हो जाए. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डिविजन अप्रोच. बिफोर आई स्टार्ट अगेन आई एम रिपीटिंग दिस पार्ट. मेक श्योर यू हैव वॉच द फर्स्ट सेशन एंड यू आर एबल टू राइट दिस इक्वेशन दैट आई टोल्ड फॉर एवरेज. दिस इक्वेशन जो मैंने बताई थी वेटेड एवरेज में, यू आर एबल टू राइट दिस इक्वेशन फॉर एनी गिवन क्वेश्चन ऑफ एवरेज. एवरेज का कोई भी क्वेश्चन है तुम उसके लिए ये एवरेज, ये इक्वेशन जो है ये लिख पा रहे हो. ठीक है, नाउ लेट्स सी द what is the deviation approach here. So let's take an example. Suppose there are n students and उनका average a है, n student हैं तुम्हारे और उनके average weight जो है तुम्हारा, average weight जो है a है and average number of students जो, not average, number of students जो है वो तुम्हारा n है. अब होगा क्या कि एक स्टूडेंट कोई ज्वाइन करेगा
है ना, कोई ज्वाइन करेगा कोई लीव करेगा, हो सकता है कि ग्रुप में ज्वाइन करें। सपोज 2 स्टूडेंट्स ज्वाइन द ग्रुप, सपोज 2 स्टूडेंट्स ज्वाइन द ग्रुप, 2 स्टूडेंट्स ज्वाइन द ग्रुप जिनका एवरेज लेट से A1 है, एंड 3 स्टूडेंट्स लीव द ग्रुप। ठीक है, लीव के लिए मैं ऐसे साइन बना रहा हूँ और ज्वाइन के लिए ऐसे साइन बना रहा हूँ। दीज आर द ज्वाइनिंग, 2 स्टूडेंट्स ज्वाइन द ग्रुप, 3 स्टूडेंट्स लीव द ग्रुप हैविंग द एवरेज ऑफ A2, फाइन, एंड टू like 1 student, 1 more student leave the group having the average of 3. So this is the type of scenario there. जैसे तुम देखोगे क्वेश्चंस भी ऐसे होते हैं, 10 मेंबर्स हैं, 1 मेंबर ने ज्वाइन किया, देन एवरेज ये हो गया, है ना, 10 मेंबर थे एंड 1 मेंबर ज्वाइन, देन एवरेज चेंजेस टू दिस थिंग. So this type of questions are there. Then now we gonna see how to write the equation. So let's first understand what is the deviation. So deviation is a simple thing. Deviation for this particular group of people, for this particular, ये जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए या फिर किसी के लिए क्या होगा, A1 माइनस A, जो इनका एवरेज है उसको सब्ट्रैक्ट करना है ओवरऑल एवरेज से, दिस विल द डेविएशन. ठीक है, नाउ आई विल लाइक इसको यूज करेंगे हम D1 से. ठीक है, बेसिकली जो गिवन एवरेज होता है तुम्हारा, जो गिवन एवरेज होता है तुम्हारा, है ना, जो पर्टिकुलर लाइक ग्रुप होगा उसका जो गिवन एवरेज होगा, लेट से A', उसको ये करते हैं. तो इसके लिए कितना हो जाएगा, D1, इसके लिए D1 लेते हैं, D1 इक्वल्स टू A1 माइनस A हो जाएगा. इस ग्रुप के लिए कितना हो जाएगा, D2 इक्वल टू A2 माइनस A हो जाएगा, एंड D3 कितना हो जाएगा, A3 माइनस A हो जाएगा. ये समझ में आ गया डेविएशन क्या चीज़ है, एवरेज से कितना डिफरेंस है. ठीक है, एवरेज से कितना डिफरेंस है. अब देखो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इक्वेशन इसको समझना बस यही पार्ट है समझने का. अब देखो इसमें क्या है, यहाँ पर लिखोगे ये A1 माइनस A1 और दूसरा लिखोगे कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, 2 लोग हैं, डेविएशन इनटू नंबर ऑफ पर्सन, डेविएशन इनटू नंबर ऑफ पर्सन. अब ये देखो जो डेविएशन है तुम्हारा, जो लाइक ये जो 2 स्टूडेंट्स हैं ये ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं, अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो प्लस साइन. ठीक है, साइन 2 चीज़ों के होंगे, ज्वाइन कर रहे हैं तो प्लस साइन. अच्छा इसका देखो, इसका साइन क्या होगा, इसका साइन डिपेंडिंग, अगर एवरेज जो ज्वाइन कर रहा है वो गिवन एवरेज से ज़्यादा है तो प्लस आएगा, अदरवाइज माइनस आएगा. तो तुम्हें इसकी साइन की टेंशन नहीं लेनी है, डैट विल कम ऑटोमेटिक. ठीक है, वो ऑटोमेटिक आएगा एंड यू हैव टू यूज दैट साइन. ऐसा नहीं कि तुमने यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू निकाल ली, सपोज ये 10 दिया हुआ है और दिस इज 8, सो विल राइट हेयर -2. ठीक है, ऐसा नहीं कि 2 लिख दिया, यू विल राइट -2. ठीक है, देन सेकेंड पर्सन दिस इज लीविंग, सो दिस इज माइनस, कितने लोग हैं 3, एंड इसका डेविएशन कितना है A2 माइनस A1, एंड देन दिस इज ज्वाइनिंग द ग्रुप, ये भी लीव कर रहा है तो दिस इज 1 और एक ही पर्सन है, इसका जो डेविएशन है कितना है A3 माइनस इक्वल्स टू. अब इस एक्टिविटी की वजह से कोई आया गया, इसकी वजह से जो चेंज आएगा, इसकी वजह से जो एवरेज में चेंज आएगा, है ना, जो एवरेज में चेंज आएगा, लेट्स से दैट इज D, जो एवरेज में चेंज आएगा इसकी वजह से, नॉट, इसकी वजह से जो एवरेज में डिफरेंस आएगा, अगर एवरेज तुम्हारा इंक्रीज कर जा रहा है, अगेन सेम चीज करोगे, ये चीज ले लेते हैं, इसे D ले लेते हैं, ये वाला फाइनल. अगर सपोज इंक्रीज करेगा, है ना, तो प्लस के साथ आएगा ऑटोमेटिक, अगर डिक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिक साइन के साथ. इनटू कितने नंबर ऑफ पर्सन्स फाइनली बचेंगे, कितने नंबर ऑफ पर्सन्स फाइनली बचेंगे उतने, लाइक यहाँ पर कितने बचेंगे. अच्छा ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव रहेगी. ठीक है, देखो इसमें क्या करना है, आई होप लेफ्ट साइड के तुम्हें समझ में आ गए होंगे. राइट साइड में क्या करना है, जो एवरेज में चेंज आएगा, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज जो भी चेंज है, चेंज तुम्हें यहाँ पर लिखना है, तो दिस इज D, साइन के साथ लिखना है. अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, है ना, जो चेंज हुआ A1 से इस प्रोसेस की वजह से ये A' हो जाता है ना. तो अगर ये पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव चेंज आएगा पॉजिटिव साइन के साथ, अगर ये निगेटिव हुआ, अगर ये लेस हुआ तो निगेटिव आएगा तो निगेटिव साइन के साथ. इनटू फाइनल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बचेंगे, यहाँ पर फाइनल कितने बचे, N स्टूडेंट थे और 2 ने ज्वाइन किया, 3 ने लीव किया, तो कितने बचे N-1, नहीं 4 ने लीव किया, है ना, 2 ने ज्वाइन किया, 4 ने लीव किया, तो N-2, 2 कम हो गए. ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा.
यहाँ पर देखो दोनों के लिए साइन सोचना है, ज्वाइन कर रहा है, लीव कर रहा है, और इसका साइन, साइन ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसका इसका तुम्हें लगाना है, ज्वाइन कर रहा है, लीव कर रहा है, डेट यू हैव टू टेक, और ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, जब सब्ट्रैक्ट करोगे अगर इस वैल्यू को तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसका साइन तुम्हें लगाना है, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ इसका साइन होगा और इसका कोई साइन नहीं होगा, बिकॉज ये तो नंबर ऑफ पर्सन है ना, ये तो पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है, ये नंबर ऑफ पर्सन हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। एवरेज तुम्हें देखना इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज कर रहा है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हें समझ में आएगा। तो बेसिकली अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं, आई कैन राइट दिस वे, जनरलाइज इक्वेशन n1d1 प्लस n2d2, वहां पर a1 a2 था, यहाँ पर ये चीज है n3d3 इक्वल्स टू d एंड फाइनल नंबर ऑफ, ये इक्वेशन है। अब क्वेश्चंस पे आते हैं तब तुम्हें और क्लियरिटी आएगी कि ये सब हो क्या रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी सीन किसे कैसे इसका लाइक हमने सॉल्व किया था नॉर्मल इक्वेशन से। नाउ लेट्स सी विद द डिवीजन। द एवरेज वेट ऑफ 10 मेंबर्स वाज 70 kg, फाइंड द एवरेज वेट इफ एन 11th गाय वेइंग दिस मच जॉइन द ग्रुप। अब देखो क्या करेंगे, अब ज्वाइन किया एक पर्सन है ना, वन पर्सन है ज्वाइंट तो प्लस साइन। अच्छा जिसने ज्वाइन किया है इसका, अब नॉर्मल एवरेज देखो 70 है, नॉर्मल एवरेज 70 है, और जिसने ज्वाइन किया है उसका 81 है, उसका 81 है। तो हम करते क्या, 81 माइनस 70 करते ना, जिसने ज्वाइन किया उसमें से माइनस करोगे तो इसका कितना ज़्यादा है इससे, 11 प्लस साइन, क्योंकि ज्वाइन किया है इसका साइन भी प्लस है तो प्लस 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 हो गया। कुछ और चेंज नहीं, हम लेफ्ट साइड पूरा चेंज लिखेंगे। फाइनल रिजल्ट क्या है, फाइनल रिजल्ट हमें नहीं पता है, फाइनल रिजल्ट जस्ट अ मिनट, यहाँ पर साइन नहीं लिखेंगे, साइन हमें नहीं पता है, ऑटोमेटिक साइन आ जाएगा, जो नहीं पता है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक्स रखते हैं, एक्स का सपोज चेंज आएगा, जो उसके ओवरऑल एवरेज में एक्स का चेंज आएगा। और फाइनल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे, ग्रुप में कितने मेंबर्स हो जाएंगे, 11, 10 थे, एक ने ज्वाइन किया। एक्स की वैल्यू क्या आई, +1, और एक्स क्या है, एक्स इज योर चेंज इन द एवरेज। तो एवरेज पहले 70 था, अब कितना हो जाएगा, 70 + 1 दैट इज 70। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज एज ऑफ क्लास 24 स्टूडेंट्स हैं एंड वन टीचर इज 15 ईयर। 24 स्टूडेंट्स एंड वन टीचर एवरेज है 15 ईयर्स, दैट इफ द टीचर इज नॉट कंसिडर्ड। अब क्या हो रहा है, टीचर इज नॉट कंसिडर्ड तो टीचर को निकाल दिया, -1, वन पर्सन इज रिमूव फ्रॉम द ग्रुप दैट इज टीचर, ठीक है। और टीचर का डेविएशन कितना है, लेट से टीचर का जो एज है लेट से टी है, टीचर का एज, ग्रुप का एवरेज कितना था पूरे ग्रुप का टीचर को इंक्लूड करके, दैट इज 15, ठीक है, इक्वल्स टू फाइनल कितने का चेंज आएगा, द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट इज 14 ईयर्स, पहले 15 थी अब 14 हो गई है, डिक्रीज हो गई है तो -1 इनटू नंबर ऑफ, अब कितने लोग बचेंगे, टीचर को अगर हटा दोगे तो कितने लोग बचेंगे, you will left with the 24 students, so this is, so if you check so this minus get cancelled, t minus 15 equals to 24, टीचर की एज है ना, एज 39 years, simple, no calculations। 10th person went to hotel for a lunch, 9 of them spent 60 rupees each and 10th person spent 90 rupees more than the average expenditure of all the persons. What is the total expenditure of all persons together? Okay, so in this 10 persons, so total like 9 of them spent 60, okay. 10th person 90 rupees, so जो 10 का एवरेज है, 10 का एवरेज लेट से ए है 10 पर्सन, तो 10th पर्सन, ये 10 पर्सन है, टोटल 10 लोगों का एवरेज ये है, 10th पर्सन हैज स्पेंड दिस मच अमाउंट, एंड जो 9 लोग हैं 9 पर्सन्स का उनका एवरेज 60 है, दिस डेटा इज वी है। तो व्हाट आई थिंक लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इट्स इजियर टू, जो लाइक लास्ट सेशन जिससे किया था हमने उस इक्वेशन से करना थोड़ा आसान, यहाँ पर सोचना थोड़ा ज़्यादा पड़ रहा है। आई एम टेकिंग टाइम टू प्रोसेस दिस क्वेश्चन, इसको डेविएशन से कैसे करेंगे एज कंपेयर टू
डेटा सिंपल है, आई वुड यूज द वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट सेशन में किया था, वो मैं प्रेफर करूंगा। मे बी कैलकुलेशन यहाँ पर आसान आ जाए, बट आई एम टेकिंग टाइम, मुझे ये डेटा समझने में टाइम लग रहा है, एज कम्पेयर टू वहाँ पर मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख लेता। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हर जगह यही मेथड फास्ट होगा, कहीं कहीं पर लाइक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि डिवीजन तुम स्ट्राइक कैसे कर पा रहे हो। इफ यू आर एबल टू थिंक, इसे यहाँ पर सोच पा रहे हो कि कैसे अप्लाई करेंगे, देन गो फॉर द डिवीजन, अदरवाइज यूज द नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कैसे इसको अप्लाई करेंगे। 1% है, ये ग्रुप लीव करेगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ऐसे दिया होगा, तुम्हें लग रहा होगा कि 10th पर्सन ज्वाइन द ग्रुप, और तब भी लग जाएगा डिवीजन, बट थोड़ा सा आई थिंक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तब हमें ज़्यादा वेरिएबल लेने पड़ सकते हैं। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, 1% लीव्स द ग्रुप, जो 10th पर्सन है वो अगर ग्रुप लीव करता है और इसका एवरेज से कितना ज़्यादा है 90, लीव के लिए माइनस साइन, और ज़्यादा कितना है 90। फाइन, अभी तक फाइन है, लेफ्ट हैंड साइड वी हैव डन इट। अब यहाँ पर क्या होगा, जब ये ग्रुप लीव करेगा तो कितने लोग बचेंगे 9, और इसकी वजह से चेंज कितना आएगा, लेट्स से x, इसकी वजह से चेंज आ जाएगा, जो तुम्हारे एवरेज में चेंज x आ जाएगा जब ये लीव कर जाएगा, तो कितना आया, x इक्वल टू -10, -10 का चेंज आएगा। तो मतलब क्या हुआ कि पहले एवरेज कितना था, 9 लोगों का एवरेज 60 है, जब 10th पर्सन था तब एवरेज इससे 10 ज़्यादा था, 10 मोर 70 था। ये समझ में, x -10 आया, मतलब क्या हुआ, ये हम क्या ले रहे हैं, जब 10th पर्सन लीव द ग्रुप, व्हेन 10th पर्सन लीव्स द ग्रुप, योर एवरेज डिक्रीजेज बाय 10। 9% का एवरेज 60 है, दिस इज द डिक्रीज एवरेज, ये जो एवरेज है डिक्रीज हो गया 10 से, जब 10th पर्सन लीव कर गया है। देखो 10% थे तो एवरेज वॉज x, जब ये 10th पर्सन लीव कर गया, एवरेज तुम्हारा कैपिटल एक्स है। ठीक है, x माइनस स्मॉल एक्स हो गया। ठीक है, and this x minus small x is given, that is 60, and this x is given, that is 10। ये हमने निकाल लिया -10 है ना, ये 10 निकाल लिया, तो x इक्वल टू 60 प्लस ये माइनस विथ साइन है। ठीक है, तो यहाँ पर विथ साइन रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर ऑलरेडी डिक्रीजिंग इट, तो इधर आ जाएगा प्लस, दैट इज 10, ये कितना हो गया 7। तो टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है, इक्वल टू 10 इंटू 70, दैट इज 700। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पर थोड़ा इसको रिवर्स में सोचना पड़ रहा है। आई वुड प्रेफर कि फर्स्ट लाइक गो में हमें नॉर्मल एवरेज, नॉर्मल इक्वेशन में आसानी से लिख पाएंगे, उसी से करें। यहाँ पर देखो बट कैलकुलेशन आसान है, सपोज कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन दिए, कैलकुलेशंस दिए होते, देन अगेन आई वुड प्रेफर द डिवीजन, अदरवाइज गो विद द नॉर्मल। व्हेन अ स्टूडेंट weighing 68 kg joins a group of 8 student, the average of group increases by 1.5, find the average of the original group। ओरिजिनल का वेट हमें निकालना है और एक स्टूडेंट 60 kg का ज्वाइन कर रहा है, तो लेट्स टेक ओरिजिनल का एवरेज a है एंड 68 kg का ज्वाइन कर रहा है, तो +1, ज्वाइन के लिए +1, एंड इसका डिवीजन कितना हो जाएगा, 68 माइनस ए जो ओरिजिनल का होगा, एंड आफ्टर ज्वाइनिंग दिस नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 9 हो जाएंगे, और इसके ज्वाइन करने की वजह से इंक्रीज कर जा रहा है इतने का, तो प्लस साइन के साथ आएगा, है ना। तो दिस इज द इक्वेशन, यहाँ से एक कितना आ जाएगा 13.5, 59 या 30.5, ए विल कम दिस साइड माइनस +60, ये कैलकुलेट करना 14, तो दिस इज 54.5 वुड बी द आंसर, इफ आई हैव डन इट राइट। कैलकुलेशन चेक कर लेना, 54.5 ए आ जाएगा ओरिजिनल ग्रुप का एवरेज। कैलकुलेशन आसान है एज कम्पेयर टू अगर हमने जो लास्ट में किया था, लास्ट सेशन में। द एवरेज वेट ऑफ 6% इज इंक्रीज्ड बाय 2.5 kg when one of them whose weight is 50 kg is replaced by a new man। find the weight of new man, न्यू मैन का वेट निकाल। तो लेट्स टेक लाइक 1 पर्सन who weighs it 50 kg, तो अभी लेते हैं ग्रुप का एवरेज ए है, तो जिसका वेट है 50 kg इज लीविंग द ग्रुप, तो -1, 50 माइनस ए। ठीक है, ये डिवीजन हो गया और ये लीविंग द ग्रुप, वी डोंट नीड टू वरी अबाउट डिवीजन साइन, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। एंड बाय और एक नया पर्सन ज्वाइन करता है, न्यू पर्सन ज्वाइन द ग्रुप, तो न्यू पर्सन ज्वाइन द ग्रुप +1, और उसका यहाँ पर लिख सकते हैं कि लाइक उसका जो लेट से वेट की बात हो रही, वेट W माइनस ए इक्वल्स टू
अब ये खुद में रिप्लेस हो गया तो नंबर ऑफ पर्सन तो चेंज नहीं होंगे, बट इंक्रीज हो जाएगा एवरेज 2.5 से, तो प्लस साइन के साथ। तो दिस इज 15 एंड -50 प्लस ए प्लस डब्ल्यू माइनस ए, तो ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। डब्ल्यू इक्वल टू 50 प्लस 15 दैट इज 6। आसान है, विदाउट एनी कैलकुलेशन, इजी कैलकुलेशन थे। द एवरेज ऑफ 6 स्टूडेंट इज 11 ईयर, इफ 2 मोर स्टूडेंट ऑफ एज दिस ज्वाइंस एवरेज विल बिकम। ठीक है, तो 2 मोर स्टूडेंट प्लस 1 ज्वाइन कर रहा है, एक स्टूडेंट 14 एज का, 14 एज का ज्वाइन कर रहा है और एवरेज 11 है, और दूसरा ज्वाइन कर रहा है 16 का, 16 और 11 है ना। तो ये लाइक तुम डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हो, मैं जैसे स्टेप लिख के तुम्हें दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें समझने में प्रॉब्लम ना हो। अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली राइट ये +3 है और ये +5 है, इक्वल्स टू। इसकी वजह से क्या चेंज आएगा वी डोंट नो, साइन हमें नहीं पता है, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा अगर इंक्रीज डिक्रीज वो भी होगा। एवरेज पर ये चेंज है, एवरेज में कितना चेंज आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव दैट विल कम ऑटोमेटिक। एंड फाइनली कितने लोग बचेंगे, पहले 6 स्टूडेंट्स थे, 2 ने ज्वाइन किया तो 8 हो जाएंगे। तो दिस इज कितना है ये 3, दिस इज 5, 8। सो दिस इज x इक्वल टू 1, +1 आया, तो पहले 11 एवरेज था, अब 11 + 1 12 ईयर एवरेज हो जाए। अब ये क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लेक्स देखने में लग रहा है, बट इफ यू सी हम डेविएशन अप्रोच यूज करेंगे एंड दिस क्वेश्चन विल बिकम सिंपलर। और अदरवाइज लाइक नॉर्मल अप्रोच से करोगे तो बहुत सारे कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। द एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट इन अ ग्रुप वाज दिस मच, तो पहले जो एवरेज वेट है इतना है, लेटर ऑन 4 स्टूडेंट्स दिस वेट ज्वाइंट, तो इसने ज्वाइन किया +1। अब इसका पॉजिटिव डेविएशन है, तो पॉजिटिव कितना है 75, पॉजिटिव निगेटिव है ना, निगेटिव है 72 - 5 9, कितना डिफरेंस है 5, 2.5, तो -2.5 है ना, -2.5 आएगा, -2.5, तो यहाँ पर माइनस कर दे। ये +1 में बार बार +1 लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में तुम नहीं लिखोगे, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें पता चले कि क्या चेंजेस कैसे हो रहे हैं ना। और यहाँ पर 73.8, अगेन ये भी छोटा है, 73.8 अगर ये करोगे तो ये 6 एंड 1 1.6, ये भी लाइक नेगेटिव में आएगा, -1.6। ज्वाइन कर रहा है इसलिए प्लस, और इसका वेट एवरेज से कम इसलिए माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब ये ज्वाइन कर रहा है तो +1, ठीक है, प्लस ज्वाइन करने के लिए, और इसका देखो ज़्यादा भी है गिवन एवरेज, लाइक 79.5 माइनस करोगे तो पॉजिटिव आएगा ना, तो 79.5 75.4 दैट इज 4.1, तो दिस इज प्लस, दोनों प्लस है, 4.1 हो जाएगा। 87 भी बड़ा है तो ये भी प्लस हो जाएगा, 87.5 75.4 1 2 12.1, दिस इज 12.1 इक्वल्स टू। कैलकुलेशन मिस्टेक अगर मैं कहीं पर कर दूं तो मुझे बता देना, ठीक है, वो हो सकता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। इक्वल्स टू, अब इसकी वजह से एवरेज इंक्रीज कर जाता है तो पॉजिटिव साइन, अगर डिक्रीज होता है तो निगेटिव साइन। अब टोटल नंबर ऑफ पहले स्टूडेंट कितने थे वो हमें नहीं पता है, वही हमें निकालना है बेसिकली। तो फाइनली कितने हो जाएंगे, लेट से एक्स, फाइनल एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा। तो इसको ऐड करते हैं, तो ये ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा 4.1 -4.1 +4.1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस इज +12.1, ये कैंसिल हो गया, +12.1, 4 नहीं ज्वाइन किया था, 5 ने, 4 नहीं ज्वाइन किया, 2.4 ओके, जस्ट अ मिनट, 87, दिस इज 4, दिस 4, ये कैंसिल नहीं दिख रहा था मुझे ना, तो दैट्स वाई थिंकिंग कि लाइक नंबर ऑफ पर्सन तो वो नहीं आएंगे, और लाइक इंटजर आएंगे ना, तो दिस इज 0। ये कैलकुलेशन चेक कर लेना, 87.4 था, मैंने यहाँ पर गलती से 5 लिख दिया था, तो मेरा 12.1 आ रहा था, बट दिस इज 4, तो ये 12.0 होगा, ठीक, 0.0 क्या 12 होगा भी, तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक था, ठीक है।
तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, x की वैल्यू 50 आ जाएगी। तो बेसिकली नंबर ऑफ पर्सन कितने थे, 50। जब ये सब हो गया, जब ये इन्होंने ज्वाइन कर लिया, बट इसने पूछा ओरिजिनल इनिशियली कितने थे। ये सब करने के बाद ये कितने, 1 2 3 4 4 पर्सन ज्वाइन करने के बाद ये सब 50 हो गए। तो पहले कितने थे, अर्लियर 50 माइनस 4 दैट इज 40, तो देयर वर 46 स्टूडेंट्स अर्लियर। सो देखो अब ये क्वेश्चन आसान हो गया है ना, वी आर एबल टू कैलकुलेट। ओके, नाउ लेट्स सी दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एवरेज ऑफ 27 numbers is 63, average of first 40 number is 65.4 and that of last 40 number is this। तो इसका हमने नॉर्मल मेथड से किया था। नाउ लेट्स सी विद द डिवीजन अप्रोच, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स इफ 14th नंबर इज एक्सक्लूडेड। तो यहाँ पर 27 नंबर्स हैं, फर्स्ट 40 नंबर देखो क्या है, फर्स्ट 40 नंबर, फर्स्ट 40 नंबर एंड इनका इससे ज़्यादा है ना प्लस, दैट इज 2.4। अब देखो मैं वो चीज़ बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ, लाइक पूरा इक्वेशन आई एम जस्ट लाइक स्किपिंग दिस स्टेप, ठीक है, ये ऐसे ये वाला स्टेप मैं स्किप कर रहा हूँ। एंड लास्ट 14, लास्ट 14 दैट इज 61 पॉइंट, तो ये इससे सब्ट्रैक्ट करोगे अगर तो आएगा 1037 981 to 1.17 इंटू 1.17 इंटू 1.17, सही है, आई थिंक सो। तो अब ये कितने पर्सन है, 14 14 28 नंबर हो गए, नॉट पर्सन, 28 नंबर्स हो गए। बट है यहाँ पर कितने, 27 नंबर, 14th नंबर 2 बार काउंट हुआ है, 14th नंबर 2 बार काउंट हुआ है, 14th नंबर 2 बार काउंट हुआ है। तो यहाँ पर क्या करना है, इक्वल्स टू 14th नंबर का जो डेविएशन है एवरेज से, जो 14th नंबर का डेविएशन है वो यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, 14th नंबर का, या फिर तो यू कैन राइट दिस थिंग डेविएशन। एवरेज कितना है, एवरेज ऑफ 27 नंबर इज 63। तो लेट से तुम्हारा जो 14th नंबर है, जो तुम्हारा 14th नंबर है उसकी वैल्यू लेट से n है, n माइनस 63 इक्वल्स टू, ये बात समझ में, -1, बिकॉज यहां पर तुमने 2 बार काउंट कर लिया, तो आई एम रिमूविंग 14th नंबर, और 14th नंबर का डिवीजन ए है इसलिए ये माइनस, ठीक है। अब ग्रुप में चेंज कितना है, कितने पर्सन का, लाइक ग्रुप में चेंज कितना होगा, क्योंकि अब यहाँ पर तो ग्रुप में कुछ चेंज है नहीं, सिर्फ ग्रुप के ही लोग हैं, कोई बाहर से नहीं आया, तो देर इज नो चेंज, जीरो चेंज, जीरो चेंज है। और फाइनल कितने, 27, तो ऑटोमेटिक ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये जीरो हो जाएगा, तो इसको उधर लाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऐसे हो गया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 14.14, अच्छा यहाँ पर ये माइनस साइन के साथ, ये माइनस साइन के साथ, ये चीज़ें चेक करते रहना, अगर मैं कहीं मिस्टेक कर दूँ तो लाइक आंसर गलत हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट क्लास के आंसर और इसके आंसर मैच नहीं करेंगे। 1.17, जस्ट टेक केयर ऑफ दैट थिंग, ठीक है। एक बार मैं फिर से वेरीफाई करता हूँ, 2.14 ये पॉजिटिव आएगा एंड लास्ट ये निगेटिव आएगा, जैसे 1.17, सो एंड 1 इक्वल्स टू n माइनस 6, 60 20, I hope again calculation सही, 14 3 42 14 20 14 3 42 14 2 28 28 4 32 14 17, है ना, इतना टाइम नहीं लेना चाहिए इस कैलकुलेशन में। तो n की वैल्यू इतनी आ गई, n इक्वल्स टू 63 प्लस 17 पॉइंट, दिस इज द वैल्यू ऑफ n। n मतलब तुम्हारा 14th नंबर का वैल्यू आ गया। अब ये कैलकुलेशन में जरा हटा रहा हूँ, प्लस ही था ना, उधर से प्लस आएगा, ये माइनस, यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव आई है, ठीक है। Okay.
तो अब देखो क्या होगा इसमें, n इक्वल्स टू, अब बोल रहा है कि इस नंबर को हटा दो तब एवरेज कितना होगा। व्हाट आई यू रिकमेंड कि ये ऐड मत करना, ठीक है, ये ऐसे ऐड मत कर देना, कैलकुलेशन स्टेप बढ़ जाएंगे। तो अब आसान सा तरीका, अब जो एवरेज आएगा एक्सक्लूडिंग 14, एवरेज एक्सक्लूडिंग 14, ठीक है, वुड बी 63 माइनस जो ये वाला नंबर है 73.22 अपॉन, अगर इसको हटा दोगे कितने 26 बचे, दिस विल बी योर आंसर। अब ये कैलकुलेटर यूज कर लेना इस स्टेप पर, अदरवाइज नॉर्मली कर लेना अगर कैलकुलेटर नहीं है, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। उस कैलकुलेशन से आसान होगा। क्या करना है तुम्हें, n इक्वल्स टू क्या किया तुमने 63 प्लस ये जैसे आता है n की वैल्यू निकालते पूरी, है ना, एक तो तरीका n की पूरी वैल्यू निकाली, बट n की पूरी वैल्यू मत निकालो, जो ये 63 है इसको रहने दो। अगर सपोज ये आता माइनस, अभी तो चलो प्लस आया, पहले इसको डिस्कस करते, प्लस आया तो जो एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट है विद साइन, एक्स्ट्रा पार्ट को बेसिकली हटाना है, तुम्हें रिमूव कर रहे हो ना, एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव करना है। अब यहाँ पर इसके साइन के साथ, ये प्लस साइन के साथ है तो प्लस साइन के साथ 17.22, अब इसको हटाने के बाद कितने नंबर्स बचेंगे 26, ये चीज कर देनी है, दिस विल गिव यू द फाइनल आंसर, कि जो हमें निकालना था एवरेज एक्सक्लूडिंग माइनस 14 को हटाकर जो एवरेज आएगा रिमेनिंग 26 का नंबर, दिस विल गिव यू। अब मैं कह रहा था कि सपोज ये माइनस में आता 63 माइनस 17.22, सपोज ये आया होता, ठीक है, अब इस क्वेश्चन को बोल दो, मैं नए क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, सपोज 17.22 आता तो यहाँ पर माइनस साइन के साथ रखते, माइनस साइन के साथ, और ये माइनस माइनस तब प्लस हो जाता, ठीक है, इस चीज का याद रखना है, तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना है विद साइन जो वैल्यू आएगी। ओके, द एवरेज ऑफ 16 नंबर्स इज दिस, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर इज दिस, एंड दैट ऑफ लास्ट 7 नंबर इज दिस, 7th and 9th number are respectively 3 and 11 greater than 8th number, what is the average of 7th number and 9th? So similar type of question, like there is no one that coming out of the group or coming in the group, है ना, कोई ग्रुप से बाहर नहीं जा रहा और कोई और ज्वाइन नहीं कर रहा, तो अगेन इंटरनल में ही सब कुछ हो रहा है इसमें। तो जो फर्स्ट 6 नंबर है, फर्स्ट 6 नंबर दे हैव 48.5, तो कितना 1.5 मोर है, तो पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगा। लास्ट 7 जो है तुम्हारे, ये 5 प्लस है, 42 माइनस 7 करोगे तो -5 आएगा, माइनस साइन के साथ आ जाएगा। एंड ऑफ 7th 9th और 8th 3 नंबर बच रहे, बिकॉज देर आर 16 नंबर्स टोटल इन द ग्रुप एंड वी हैव टिल नाउ 6 और 7 ऐड के, तो 30 नंबर हुए, तो 3 नंबर बच रहे 7 8 और 9। तो 8th नंबर को बोला है कि डेट इज ए, उसको ले लेते हैं, और 7th 3 है, a प्लस 3, 7th 9th तुम्हारा जो है डेट इज a प्लस 11, a प्लस 11 है, ठीक है। तो नाउ लेट्स राइट दिस थिंग, so 7th will be your plus, we don't know the sign that will come automatically, वो automatic आ जाएगा, you don't need to worry about that thing. So right now just let's write how much 7a plus 3 minus, अब देखो क्या कर सकते हैं, 47 अगर लिखोगे तो कैलकुलेशन आई थिंक डिफिकल्ट बना देगा, मैं कैलकुलेट करना, इंस्टेड लेट्स राइट इट राउ x, ठीक है, उसको लास्ट में वैल्यू पुट कर देंगे, कर भी सकते हो, इट्स डजेंट मैटर, ठीक है, कोई बहुत दिक्कत नहीं होगी, बट मेरे लिए कैलकुलेशन प्रॉब्लम होती है, सो आई विल ट्राई टू अवॉइड दिस थिंग, कि अभी के लिए अवॉइड हो जाए, हो सकता है कहीं पर कैंसिल हो जाए, है ना, आई डोंट नो, लाइक कहीं पर कैंसिल भी हो सकता है। a माइनस एक्स एंड दिस इज a प्लस 11 माइनस एक्स, अगेन x 47 दिया हुआ है, ठीक है, x इक्वल टू 47 दिया हुआ है, इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, बिकॉज इंटरनल हो रहा है, देर इज नथिंग चेंज, एवरेज जितना है उतना ही रहेगा, 47 ही रहेगा, एंड नंबर ऑफ पर्सन्स कितने, नंबर ऑफ नंबर्स कितने 47 ही, तो ये 0 हो जाएगा। तो नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन 9 35 एंड दिस इज 3a, x कैंसिल नहीं हो रहे, 3 माइनस एक्स, 11 3 14 इक्वल्स टू 0, 3a माइनस 3x इक्वल्स टू 23 माइनस 35, 23 माइनस 35, 23 that is minus 12, so this is 12, तो 3 कैंसिल हो गया, a माइनस एक्स इक्वल टू 4 आ गया, a इक्वल्स टू x प्लस 4 that is 47 प्लस
4 डेट इज 51। ए की वैल्यू 51 आ गई। एवरेज निकालना है सेवन्थ और नाइन्थ नंबर का। सेवन्थ हो गया तुम्हारा 54 और नाइन्थ हो गया तुम्हारा 62। इन दोनों का एवरेज प्लस बाई 2 कर दो, है ना। तो कितना हो जाएगा ये 27 एंड 31, 27 31, ये तो तुम कर लेना 58 आंसर। 58 विल बी योर आंसर। द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ ऑल द वर्कर्स इन अ कंपनी इज 95। अब देखो इसमें क्या है कि दो लोग इन्वॉल्व हैं, लाइक एक तो वर्कर है और एक ऑफिसर है, लाइक एक ऑफिसर है और एक अदर पर्सन है। तो इसके लिए एलिगेशन इज द फास्टेस्ट मेथड दैट विल डू व्हेन जब एलिगेशन करेंगे। बट अभी के लिए ये वाला भी अप्रोच देख लेते हैं कि क्वेश्चन इससे कैसे बनाओगे डेविएशन। तो इन अ कंपनी लाइक 95 है ओवरऑल। द एवरेज सैलरी ऑफ 15 ऑफिसर्स, सो 15 ऑफिसर्स हैं, इनकी एवरेज सैलरी इतनी है ना। एवरेज सैलरी इनकी है लाइक 525 माइनस 95, और जो अदर हैं वी डोंट नो कितने लोग हैं, है ना, वही हमें निकालना, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। और इनका जो है डेट इज 85 माइनस 95 है। अगेन पूरा इंटरनल है तो कोई चेंज नहीं आएगा, जीरो। तो दिस इज इसका डिफरेंस आएगा 100 सब्ट्रैक्ट कर दो, 100 सब्ट्रैक्ट करोगे और फिर ऐड कर दो तो 430, 430 इंटू 15 प्लस नॉट प्लस, दिस विल बी अ माइनस 10x। तो बेसिकली इक्वल टू 10x, इस साइड ले आओ उसको। तो दिस इज, ये कैंसिल कर दो। तो 43 इंटू 15, 15 3 होता है 45, 15 4 60, 64। x इक्वल टू 645। x इतना आ गया। x ये हो गए तुम्हारे अदर जो बोला था, रेस्ट और ऑफिसर्स कितने 15, तो टोटल कितने हो जाएंगे 64 प्लस 15 दैट इज 660। आई थिंक आई रिमेंबर द आंसर 660 आ रहा था लास्ट क्लास। एवरेज रेनफॉल फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे, ये भी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। 123 दैट ऑफ वेडनेसडे टू संडे इज दिस एंड एवरेज रेनफॉल ऑफ द वीक इज दिस। वेडनेसडे का हमें निकालना है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मंडे टू वेडनेसडे दिया हुआ है, वेडनेस टू संडे दिया हुआ है। तो वेडनेसडे 2 बार काउंट हो रहा है, तो देखो कैसे लिखेंगे। पहला लिखते हैं मंडे टू वेडनेसडे इज 123, और एवरेज कितना है, वीक का पूरा एवरेज है 126। और तो ये -3 है ना, -3 साइन के साथ आएगा कितने, -3 साइन के साथ कितने 3 डेज का। माइनस क्यों आ रहा है, बिकॉज 123 माइनस 26 करोगे ना, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ तो समझ पाओ उसको कहाँ से मैं लिख रहा हूँ। ओके, देन फिर कितने डेज बचे, 5 डेज। 5 डेज कितना है, ये 126 से +1 है, 5 डेज का +1 है, 127 है ना, तो +1 आएगा, प्लस इंटू 1 इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। अब यहाँ पर देखो कितने 8 डेज हो गए ना, 8 डेज हो गए, 5 और 3, बट वीक में कितने 7 डेज ही होते हैं। एक डे एक्स्ट्रा है, कौन सा, वेडनेसडे, वेडनेसडे एक्स्ट्रा है, तो आई विल रिमूव वेडनेसडे। वेडनेसडे को रिमूव करते हैं, वेडनेसडे को रिमूव करते हैं, वेडनेसडे माइनस कितना है यहाँ पर 126 कितना है, एवरेज 126 है, इक्वल्स टू, सारा इंटरनल हो गया तो 0 आ जाएगा। तो इसको इधर कर लो, 1 माइनस, इसको कैलकुलेट कर लो, दैट इज 5 एंड 5 कितना -4 ना, -4, तो इधर पॉजिटिव आएगा, तो 126 माइनस 4 इक्वल्स टू 120, 122। रेनफॉल ऑन वेडनेसडे वाज 1। The average weight of students in a class is 60 kg. When two new students having weight 90 and 98 join the class and one student of weight 42 kg leaves the class, the average of the class becomes 62. How many students are in the class? Okay, similar type question हम कर चुके हैं अभी तक बहुत सारे, फिर ये भी कर लेते हैं। Like these all are question I am just doing that you understand this concept properly. Like कोई भी question आए you are able to tackle, you are able to solve questions, any question that come from this concept, ठीक है। एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास इज 60 kg व्हेन टू स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं एंड दे हैव 90 kg वेट, तो इससे ज़्यादा है ना 30, 90 माइनस 60 करोगे तो डेट इज +30, और ज्वाइन कर रहे हैं उसके लिए भी प्लस आएगा, तो दोनों साइन प्लस हो जाएंगे, प्लस प्लस प्लस।
एंड 98 ज्वाइन द क्लास। अच्छा सॉरी, दो अलग अलग स्टूडेंट, एक का 90 है और एक का 98। व्हेन टू स्टूडेंट्स, न्यू स्टूडेंट्स हैविंग वेट 90, तो एक प्लस ज्वाइन कर रहा है +30 के साथ, दूसरा ज्वाइन कर रहा है +38 के साथ, एंड वन ऑफ द स्टूडेंट 42 kg लीव्स द ग्रुप। तो ये लीव कर रहा है और इसका है 42 - 60, लीव कर रहा है। एक ठीक है, ये गलती मत करना, जस्ट डेविएशन याद रखो, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। 42 - 60, नाउ द एवरेज, न्यू एवरेज ऑफ क्लास बिकम्स, तो अब न्यू एवरेज क्या हो रहा है, 60 से 62 हो गया, +2 हो गया। फाइनल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना, तो फाइनल नंबर ऑफ स्टूडेंट लेट से n है 68 माइनस, और ये 18 आएगा ना, -18 तो +18 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड दिस इज 34 + 9 = 43। तो ये 43 आ रहा है। ये 43 क्या है, ये होने के बाद, ये प्रोसेस होने के बाद जब ये दो स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, ये फाइनल होता है, ठीक है, फाइनल जब +2 हो गया तब कितने लोग, दिस इज द एंड। तो दिस इज 43। तो इनिशियली कितने थे, दो ज्वाइन करने के बाद ही हुआ, तो इनिशियली 41 स्टूडेंट्स वर देयर इन द क्लास। द एवरेज रन ऑफ अ बैट्समैन फॉर 52 innings is this, and his lowest score is less than the highest score. Similar type of question, if 2 innings of highest and lowest runs are excluded, then the average of the remaining inning is this. What is the lowest run? तो 52 इनिंग 56 का स्कोर है लोवेस्ट। तो लेट्स से लोवेस्ट तुम्हारा एल है, तो हाईएस्ट एल +72 हो जाएगा, है ना, हाईएस्ट एल +72 हो जाएगा। इफ 2 innings ऑफ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट रन एक्सक्लूड, अब कह रहे हैं कि इन दो इनिंग को अगर हटा दिया जाए, तो लेट्स रिमूव, तो एल एवरेज कितना था 56 माइनस एल +72 -56, देन द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग का एवरेज 55 आ जाएगा, 56 से एवरेज 55 आ जाएगा, -1 का डिक्रीज है, -1 हो जाएगा। एंड इनिंग्स अब कितनी बचेंगी, पहले 52 थी, अब दो इनिंग तुमने हटा दी है, तो कितनी बचेगी 50। तो ये माइनस साइन पहले कैंसिल करते हैं, सारे प्लस हो जाएंगे, ब्रैकेट ओपन करो तो 12 हो जाएगा, और 76 - 112 50, एंड so this is 50 - 76 + 112। कैलकुलेशन अगर कहीं मैं मिस्टेक कर दूं तो मुझे कमेंट में जस्ट बता देना। 162 76 8 L = 40, L is 43। तो लोवेस्ट स्कोर ये में निकालना था, एंड दैट इज 40। ओके, so I hope these things are clear. I have tried to cover all type of questions जो हो सकते हैं, and I hope you have learned this approach. हो सकता है तुम्हें थोड़ा टाइम लगे सीखने में, try to watch this multiple times, है ना, बार बार इसको देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। मेक श्योर प्रॉपर नोट्स एंड डू क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट बुक्स, ढूंढ के इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करो, देन यू विल, वंस यू मास्टर दिस थिंग, यू विल बी लाइक सॉल्व क्वेश्चंस वेरी इजिली। अगर मॉक वगैरह में क्वेश्चन तुम्हें दिखते हैं तो बहुत ही कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ओके, एंड मेक श्योर लाइक द सेशन अगर अच्छा लगता है तुम्हें, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स जो कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एज वेल एज वी हैव ग्रुप ऑल्सो, वो भी ज्वाइन कर लो, ग्रुप इस नेम से है, ये चैनल का लिंक है, ग्रुप जस्ट पुट द लाइक कैट रेस ग्रुप, यू विल गेट द ग्रुप। So that's it for today. Let's see you in the next session.